Hello everyone, I am Parikshit Gupta and welcome to my channel PJEE by PG. Today I will be taking up a very interesting question from a very famous physics book named Physics Galaxy. It's a very renowned book for JEE Mains and JEE Advanced preparation. Do check it out once. So through this question I want to explain how the radius of curvature changes with different frames of reference. Basically I want to give you an overview of the radius of curvature. Along with that we'll be analyzing this question. अच्छा, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं है, मैंने थोड़ा सा चेंज करा है. I've added a part. The first part is added by me. क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दी हुई है जिसका मास है, रेडियस r है, एक स्मूथ सरफेस पे मैंने रख दी है. G is given to be acting inside the plane, into the plane. तो which means कि हमने we have put this arrangement on top of a smooth table. ठीक है. A particle of mass small m is connected to the circumference of the disk with a massless string. The string is initially just taut. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस string में अगर इसके जो ends of the string which is the point B and the point P, the particle P, इनके बीच में अगर हल्का सा भी relative motion आएगा against each other, then the string will become taut. अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? The question says कि impulse J is applied to the particle in the direction as shown. Okay, and we have to find the radius of curvature with respect to the ground frame just after the impulse is applied and the acceleration of the center of mass of the disk just after the impulse is applied. अच्छा, ठीक है. अब थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसे ही impulse J लगेगा वैसे ही होगा क्या एग्जैक्टली. तो जैसे ही impulse J लगेगा तो the mass will gain some velocity v which is given by G upon M, right? अब जैसे ये velocity gain करेगा in this direction, the mass will try and move in this direction. इसके कारण ये string थोड़ी सी हो जाएगी extend, and due to that it will develop some tension P in the string. This tension will try and pull the particle P in the upward direction, and it will pull the disk to point B on the disk in the downward direction like this. अच्छा, अब इस टेंशन के कारण होगा क्या? This disk will gain or acquire some angular acceleration alpha, or it will gain some linear acceleration which is the acceleration of the center of mass. क्यों? क्योंकि टेंशन लग रहा है हमारा at the point P in the downward direction, तो the acceleration of the center of mass will also be in the downward direction क्योंकि और कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है इस डिस्क पे. ठीक है, तो अब निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. बेसिक एनालिसिस होगी, ओवरऑल एनालिसिस तो बेसिक होगी. सबसे पहले we'll use the टॉर्क इक्वेशन, we'll use the फोर्स इक्वेशन. ये दो इक्वेशंस फटाफट यूज करेंगे और वहां से जो एनालिसिस आती है उसके बारे में हम बात करेंगे. जो टेंशन वाला पार्ट होगा ना, जो आपको टेंशन कैलकुलेट करनी होगी स्ट्रिंग में, दैट विल बी ट्रिकी. क्यों? क्योंकि for that we'll have to analyze the motion of this particle P. और अगर मैं इस पार्टिकल P की मोशन की बात करूं तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मोशन. इस पार्टिकल का जो पाथ होगा इट विल नॉट बी अ लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स मोशन. क्लियरली दिख रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम जस्ट आफ्टर द कोलिजन दिस पॉइंट B will start to it will gain some velocity in the downward direction, और ये जो डिस्क होगा कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी गेन करना शुरू कर देगा. तो उसके कारण जो पार्टिकल P का मोशन होगा ना, दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स मोशन. सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम तो हम इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाएंगे. अच्छा, अगर पॉइंट B पर बैठ जाओ तो क्या कह सकता हूँ? यस, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B दिस पार्टिकल P विल बी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मैं अज्यूम कर सकता हूँ अगर मैं P पे बैठ के देखूँ, so about this pivot, the point B, this particle can be assumed to be performing circular motion, और circular motion की एनालिसिस हम बड़े आराम से कर सकते हैं. So for that we'll have to calculate the acceleration of B. Acceleration of B क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि we are analyzing a particle with respect to that point, so उसका acceleration हमें पता होना चाहिए ताकि हम pseudo forces वगैरह की एनालिसिस कर सकें. ठीक है, सपोज मैंने एक ओवरव्यू दे दिया about the question. सबसे पहला पार्ट हमें क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में. उसके बाद जो मैंने
क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताया, वी गो थ्रू द प्रोसेस वंस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज मेरे पास कोई भी कर्व दिया हुआ है, कोई भी मैथमेटिकल कर्व दिया हुआ है गिवन बाय सम इक्वेशन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो किसी भी पॉइंट ऑन दैट कर्व आई कैन डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? उस कर्व पे बैठो, किसी भी पॉइंट पे बैठो, एक स्मॉल डिफरेंशियल आर्क ले लो उस कर्व पे, ठीक है? दिस आर्क कैन बी assumed to be a part of larger circle just touching that arc, और उस सर्कल का जो रेडियस होता है ना, that radius is called as the radius of curvature of this curve C at this point, suppose Q। और उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है, थोड़ा मैथमेटिकल अगर आप डेरिवेशन करोगे तो उसके बाद ये एक्सप्रेशन ये बन के आती है, एंड दैट डेरिवेशन आई either attach the link to that derivation to the research paper, या जो भी ऑनलाइन लिंक होगी आई attach it in the description, या फिर आई मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग दिस डेरिवेशन और थोड़ा सा इनसाइट्स और दूंगा इन दैट वीडियो ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो ये तो होगा मैथमेटिकल एस्पेक्ट। अगर मैं फिजिक्स से रिलेटेड बात करूँ, जो हमारे जेई मेंस और जेई एडवांस में के रिस्पेक्ट में जो यूजुअली हमें सिचुएशंस मिलेगी, सो अगर हमें पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी पता लग गई, अगर हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सफिशिएंट है टू डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी निकाल लो। जिस पॉइंट पे या जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू सपोज t1 पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो x1 y1, एंड ऑन फॉर दिस कोऑर्डिनेट्स यूज दिस मैथमेटिकल इक्वेशन एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यूजुअली ट्रेजेक्टरी निकालना काफी टफ भी हो सकता है और जरूरत भी नहीं होती काफी सारे क्वेश्चंस। तो सिंपली आप जिस टाइम t इक्वल टू t1 की आपको एनालिसिस करनी है, तो सीधा टाइम t इक्वल टू t1 पे चले जाओ एंड चेक कि भाई सेंटर सीकिंग फोर्सेस क्या है। तो जो भी सेंटर सीकिंग फोर्सेस होंगे दे विल बी प्रोवाइडिंग सम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बिल्कुल, एंड दैट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज, yeah, the sum of the center seeking forces can be given as mv square, which is the tangential velocity upon the radius of curvature at that moment। तो उस इंस्टेंट पे जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज rc। और यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हो कि अगर मेरे को सेंटर सीकिंग फोर्सेस का सम पता है फॉर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, तो मैं किसी भी इंस्टेंट पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूँ by using this equation RC। I think you've understood the point। तो इसी से फिर ये आ जाता है, तो इस फोर्स के कारण जो नेट एक्सेलरेशन बनेगा that will be the centripetal acceleration at that moment, and it will be equal to the tangential velocity square upon the radius of curvature at that instant। Now the point I wanted to highlight was कि with respect to different frames of reference, the same particle can have different radius of curvatures। सपोज एक फ्रेम F1 है, इस फ्रेम F1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं किसी पार्टिकल P को ऑब्जर्व करता हूँ, तो उसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आती है सपोज गिवन बाय सम कर्व C1, एंड अज्यूम कि मेरे पास एक फ्रेम F2 है which is having some relative acceleration of velocity in the reference frame F1, तो corresponding definitely जो पार्टिकल C पार्टिकल P की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होगी वो डिफरेंट होगी। सपोज इट्स गिवन बाय सम कर्व C2। आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप इस पार्टिकल P के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स निकालते हो ऑन दिस कर्व C1 एंड C2, वेरी इंट्यूटिवली बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशन दे विल बी डिफरेंट। सो बहुत ही इंट्यूटिव चीज है कि अगर दो अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक ही पार्टिकल की रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की बात करूं, तो इट विल बी दोस रेडियस ऑफ कर्वेचर्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विल बी डिफरेंट। और यही हो रहा है इस क्वेश्चन में भी। जो पॉइंट बी है उस पर बैठ के देखो पार्टिकल P is performing a circular motion, तो radius of curvature will be nothing but L, the length of the string। But with respect to the ground frame, the particle P is performing a complex motion, so we cannot directly say anything about the radius of curvature। अच्छा, one more thing, यहाँ पर when I say center seeking forces, I mean the forces which are perpendicular to the direction of motion of the particle। मतलब V the tangential velocity की जो भी perpendicular forces है, I refer to those forces when I say center seeking forces। Okay, so I hope radius of curvature का concept clear है।
Now let's move on to the actual analysis of the question. I've already given a brief about the question कि कैसे solve करना है. अब actual analysis पर move further, फटाफट फटाफट देखेंगे कैसे analyze कर रहे हैं. ठीक है. तो just after the collision, as I said earlier, there will be some angular acceleration alpha, and due to the tension acting at point B on the disk, there will be some linear acceleration AC. अब since horizontal direction में कोई forces है नहीं इस डिस्क पे, तो there will be no acceleration in the horizontal direction. Vertical direction में force act होगा, vertical direction में acceleration आना चाहिए center of mass के डिस्क पे. तो फोर्स इक्वेशन लिखिए. फोर्स इक्वेशन से we'll get this result, and from the torque equation about the center of mass we'll get this result for the tension. अब in order to analyze the question further, ये टेंशन कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और टेंशन हम तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस पॉइंट P के मोशन को एनालाइज नहीं कर लें. और इस पॉइंट P को एनालाइज करने के लिए जो बेस्ट लोकेशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम P को एनालाइज कर सकते हैं, दैट इज B. I told you क्योंकि B के रिस्पेक्ट में P will be performing सर्कुलर मोशन. ठीक है. और B के रिस्पेक्ट में अगर आपको एनालाइज करना है तो we'll have to know the acceleration of B. तो फटाफट acceleration of B कैलकुलेट कर लेते हैं. The acceleration of B with respect to the center of mass can be given as acceleration of B minus the acceleration of the center of mass. सिंपल रिलेटिव मोशन की इक्वेशन है. इसमें ये समझना जरूरी है कि मैंने एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्यों लिया. क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में मेरे between any 2 points I can calculate the relative acceleration and their relative velocities. इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए I put up a different video, but right now just follow the result. तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊँ, सपोज मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया और B को देखूंगा, ठीक है, तो what are the two accelerations B will be having with respect to center of mass? First of all, एक तो होगा R alpha in the downward direction, and there is a possibility of a centripetal acceleration. But in this case, initially, just after the collision, there is no angular velocity. Since there is no angular velocity, the point B on the disk will have no centripetal acceleration. I really hope you have understood the point. So we can clearly say that acceleration of B with respect to the center of mass will be nothing but R alpha in the G cap direction plus omega square R in the I cap direction. But in this case, it is 0. इस चीज को पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में, so I'll get acceleration of B with respect to the ground as acceleration of center of mass plus the acceleration of B with respect to center of mass. और acceleration of center of mass इस इक्वेशन से मुझे पता है कि is nothing but R alpha by 2 in the G cap direction plus acceleration of B with respect to center of mass is R alpha in the G cap direction. So हमारे पास acceleration of B निकल गया रहता है 3R alpha by 2 in the G cap direction. I really hope you understood the point. ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी होगा अंडरस्टैंड करना जिनको पता नहीं. So जिनको पता है well and good. I'll put up a different video explaining how to take accelerations with respect to two different points on the same rigid body. ठीक है. अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं एनालिसिस के लिए. एक्सेलरेशन ऑफ B आ गया है. आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स एनालाइज द मोशन ऑफ द पार्टिकल P. तो मोशन ऑफ द पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स मोशन. मैंने पहले भी बोला था कि दैट मोशन विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मोशन. उसको हम डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये कह सकता हूँ जो भी मोशन होगा, जो भी इस पार्टिकल P की ट्रेजेक्टरी होगी, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन में जितने भी फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो देख लेते हैं. ठीक है, कितने कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं. जस्ट द टेंशन फोर्स इन आवर केस, और दैट मस्ट बी इक्वल टू द मास टाइम्स द टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इनिशियली बताऊंगा कि ऑल्दो जो पार्टिकल P है इट इज परफॉर्मिंग और इट इज ट्रेजेक्टरी सम कॉम्प्लेक्स कर्व विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बट जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये कह सकता हूँ कि जितनी भी सेंटर सीकिंग फोर्सेस है और जितनी भी फोर्सेस है व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे विल ऐड अप टू दिस. ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे बस टेंशन निकालनी. जैसी टेंशन निकालूंगा V की वैल्यू मुझे पता है, V कैन बी गिवन एज J अपॉन M using the angular using the impulse momentum theorem, और RC की वैल्यू अपने आप आ जाएगी. ठीक है,
अब बी पर बैठ जाओ, जरा बी पर बैठ के देखो कि ये जो पार्टिकल पी है स्मॉल एम मास का, उसका मोशन कैसा होगा। तो बी पर बैठ के देखूंगा तो एक टेंशन फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगी होगा, साइमल्टेनियसली देयर विल बी सीडो फोर्स of 3 mr alpha upon 2 acting on that particle B। क्यों? क्योंकि B is accelerated फ्रेम, तो पक्की बात है सीडो फोर्स भी हमें लगाना ही पड़ेगा। B के रिस्पेक्ट में अगर मैं फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। B के रिस्पेक्ट में वी नो दैट the particle P will be performing a circular motion, so the net forces in the upward direction will add up to the centripetal acceleration about the point P। और टेंशन का और एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी ऑलरेडी है रिलेशन। इन सब चीज़ों को इफ यू पुट टुगेदर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन की वैल्यू जैसी मिलती है, पुट द वैल्यू ऑफ टेंशन in this equation, and after simplifying you get the radius of curvature, and this radius of curvature is with respect to the ground. You must note that this is with respect to the ground. With respect to the point P, the radius of curvature is L. Now the second part of the question was to calculate the acceleration of the center of mass। तो जो हमारे पास फोर्स और टॉर्क इक्वेशन हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, तो वहां से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास विल बी r alpha upon 2, which will be effectively tension upon the capital M। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो you will get acceleration of center of mass as j square upon ml 3m plus m। v वगैरह की वैल्यूज रख देना इन टर्म्स ऑफ j, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। सो दिस वाज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा थ्रू दिस क्वेश्चन। The main concept that I want to teach in this video was the concept of radius of curvature and how does it change with different frames of reference। ये जो mathematical equation है ये कैसे आती है, I'll put up a article on this in the description and I'll try to make a separate video on that as well। So this was it, this was today's question। Do comment down below your doubts or any suggestions for future videos। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सीरीज में, और डेफिनेटली अपनी जो जी मीन्स एंड एडवांस है 2024 के लिए, उसके लिए कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, बाय बाय।